So we start here. Tomorrow I क्या आएगा? Will be reading, will read or will be read? Will be read. Tomorrow I will be reading या I will read all day. This is suiting more. Tomorrow I will read all day. I will be reading भी ठीक है वैसे. Tomorrow I will be reading. Tomorrow I will read all day. ये भी ठीक है. By the time we get there, the train will. By the time we get there, the train will have left. By the time we get there, will have left. Why? Because जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे the train will have left. यहाँ भी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और ये एक्शन भी हमारा फ्यूचर का है. तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस. I dash you tomorrow at 11 a.m. at the theater. I will see you tomorrow. I will see you tomorrow. After you finish this video, I will be seeing all of this director movies. After we finish this video, ठीक है, ये भी फ्यूचर में आया. I will have seen. No, I will be seeing. I will see. I will see all of this director movies. Can I come over in an hour? No, I will be washing the house. Here we will use this continuous. You will be doing that thing, ना? Action जो progress में होगा. This time next week I will be enjoying. Millie doesn't understand how wrong she is, but she will realize it. Realize. कर लेगी realize. अभी उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कितनी गलत है. She insulted me. I dash to her again. I will never speak to her again. If you continue typing so fast, you will be typing out the whole project by. You will type out या you will be typing out. If you continue typing so fast, you will be typing out the whole project. She dash me when her birthday is. She will not have told me. No, she will not be telling me when her birthday is. She won't tell me when her birthday is. She will not be telling me.
शी वोंट टेल मी व्हेन हर बर्थडे इज। यहाँ वोंट सूट कर रहा है ज्यादा, वोंट आएगा। शी वोंट टेल मी। The other verb forms used in expressing the future term। अब हम कुछ और verb forms की बात करेंगे जो हमें फ्यूचर के बारे में बताती हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म, ये भी हमें फ्यूचर सिचुएशन के बारे में दैट हैज बीन अरेंज्ड बिफोर द प्रेजेंट टाइम, उसके बारे में बताती है। कैसे? वीना इज विजिटिंग द डॉक्टर टुमारो। अब इसमें इज लगा, ये वाला प्रेजेंट का, विजिटिंग, विजिट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing, ठीक है। ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट में, नहीं प्रेजेंट टेंस में, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, और टुमारो मीन्स यहाँ पे फ्यूचर आ गया। तो ये भी जो हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म है, ये भी हमें फ्यूचर के बारे में बताती है। वीना इज विजिटिंग द डॉक्टर टुमारो। Don't call me on Sunday. My cousin is arriving the day before. Means again it is present continuous. मुझे संडे को मत बुलाना मीन्स यहाँ पे आपने फ्यूचर की बात पहले कर दी, ठीक है ना। My cousin is arriving the day before. The CM is meeting the PM next week. Next week again फ्यूचर आ गया, और यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया हमारा। यहाँ पे ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और यहाँ पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। बी प्लस गोइंग टू फॉर्म, यहाँ पे भी हमें गोइंग टू इम्प्लाइज द स्पीकर इज सर्टन अबाउट द इवेंट अकरिंग इन द नियर फ्यूचर। जब हम बोलते हैं ना वर्ड गोइंग टू फ्रेज अगर हम बोलें, तो इसका मतलब कि फ्यूचर में वो चीज होने वाली है, इट्स क्वाइट सर्टन। इज एम आर गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स। क्लाउड्स आर डार्क, क्लाउड्स क्या हैं? डार्क हैं। सो इट इज गोइंग टू रेन, अगेन इट इज गोइंग टू ना, गोइंग टू आ गया यहाँ पे। इज एम आर, इज लग गया, गोइंग टू लग गया, और रेन। तो इसमें हमारा इज एम आर गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे हैव लॉस्ट देयर कार, ठीक है, ये आपको पहले उन्होंने क्लॉज दे दिया। दे हैव लॉस्ट द कार, दे आर गोइंग टू फाइल ए कंप्लेंट एट द पुलिस स्टेशन। सो दिस इज द मेन सेंटेंस हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो। So they have lost the car, so that is why they are going to file. Again, are and going to file की verb की first form. It's 8. ये आपको उन्होंने बता दिया। I am going to study physics as per schedule. Means he always study physics at 8 o'clock. So here again I am going to study. Going to clause. Going to आ गया, verb की first form आ गई, और ये am be की first form. Pooja is going to take up science in her higher classes. Means it's very certain that in higher classes she'll be going to take up science. Again is going to and take up. 3 different things. Present indefinite form में भी हमें verb की first form और verb की first form के साथ s और es लगता है. Then also we come to know about the future situations. The present indefinite form is frequently used for the situations that happen often or regularly. हम present indefinite form में किसकी बात करते हैं? स्पेशली ऐसी situations जो frequently होती हैं या आप जो चीज़ regular करते हैं. So we talk about that things, that situations in present indefinite. So it can therefore be used for future situation that is a part of regular series of happenings. So this context can be used in the future situation also. Like, see the example. The flight for Mumbai leaves at midnight tonight. The flight for Mumbai, ठीक है, आपको मालूम है मुंबई की जो फ्लाइट है, leaves at midnight means आज midnight वो निकल जाएगी, leaves। ये आ गई हमारी present indefinite form आ गई, s लगा पीछे सिर्फ। तो इससे भी हमें फ्यूचर का पता चल रहा है कि जो फ्लाइट है मुंबई की वो आज कब निकलेगी? midnight tonight। फ्यूचर में होने वाला एक्शन है, बट इसमें हमने फॉर्म कौन सी लगाई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस और es. द ट्रेन फॉर पंजाब अराइव्स, अगेन अराइव के बाद एस लगा है,
at 12 noon, ये भी हमें फ्यूचर के बारे में बता रहा है. प्रेजेंट इंडेफिनिट इज ऑल्सो यूज फॉर समथिंग दैट इज सीन एज अ पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वही बात करते हैं ना, जो हम रेगुलर करते आ रहे हैं, जो हैबिट हमारी कंसिस्टेंट है, हैबिचुअल है. At 8 AM we leave for the museum. या आपने वो प्लान किया हुआ है पहले से कि इतने बजे मैं ये करूँगा या इतने बजे हम यहाँ जाएंगे ना. तो at 8 AM we leave for the museum. तो वो प्लान किया हुआ, उन्होंने फिक्स्ड है वो कि at 8 AM they will leave for the museum. तो ये भी फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि हम 8 बजे म्यूजियम के लिए निकल जाएंगे. In the afternoon we have lunch at the holiday restaurant. आफ्टरनून में हम लंच कहाँ लेंगे? हॉलिडे रेस्टोरेंट में. अगेन इट इज टेलिंग अबाउट द फ्यूचर. वी गो टू द मॉल रोड इन द इवनिंग. हम मॉल रोड इवनिंग में जाते हैं. अगेन हियर इट इज टेलिंग अबाउट द फ्यूचर सिचुएशन. सो बी प्लस 2 इन्फिनिटिव फॉर्म. द फॉर्म B2 plus verb plus 2 plus verb refers to the schedule of authority that is happy to be happy in future as a plan or a decree. The PM is to fly to Washington this evening. PM ने आज कहाँ जाना है इवनिंग में? Washington. Announced the Downing Street this morning. Common television and radio news report. CM to fly to Delhi. Again, here we are predicting something which is going to happen in future. CM to fly to Delhi. ऐसा ही लिखते हैं ना न्यूज़पेपर हेडलाइंस में. तो यहाँ पे भी B की फॉर्म प्लस 2 इन्फिनिटिव. ये 2 और ये इन्फिनिटिव वाला वर्ब है. इट्स ऑल्सो इन्फिनिटिव वर्ब. तो ये भी हमें फ्यूचर के बारे में. PM इज टू फ्लाई टू वॉशिंगटन दिस इवनिंग, ऐसा हमें न्यूज़ में और रिपोर्ट्स में सुनने को मिलता है. ठीक है, तो इतना आप पूरा रिवाइज कीजिए. सो नेक्स्ट डे वी विल डू दिस. ओके, आपने अभी जितना मैंने पढ़ाया है, यू हैव टू रिवाइज द रूल्स. दोबारा पढ़िए, एग्जाम्पल्स पढ़िए, आपको ठीक से समझ आए.